السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر سسٹرز، میں آج لیکچر نہیں دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم مل وعلیکم کر اپنے السلام دل کو ورحمۃ اللہ دیکھیں۔ وبرکاتہ۔ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، آج میری سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ کل میری سب سے بڑی فکر کیا ہوگی؟ 1 مہینے بعد، 1 سال بعد، یا 5 سال بعد؟ جو بھی جواب آئے اس کو چینج مت کیجئے، اس کو جج مت کیجئے، بس نوٹ کیے۔ اب دوسرا سوال ہے، اگر اللہ گارنٹی دے دیں کہ یہ مسئلہ سولو ہو جائے گا تو کیا میری بے چینی ختم ہو جائے گی؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی رسپانس کر سکتے ہیں۔ شاید ہم سب کا جواب ہوگا ہاں، لیکن کیا واقعی، یا پھر دماغ کسی دوسری فکر کو پکڑ لے گا؟ یہیں سے آج کا سفر ہم شروع کرتے ہیں۔ فیوچر وریز کی اصل پرابلم کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں فیوچر کی فکر ہے، لیکن اصل میں ہمیں فیوچر سے زیادہ انسرٹینٹی کی فکر ہوتی ہے۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اوکے۔ ہمیں فیوچر سے زیادہ انسرٹینٹی کی فکر ہوتی ہے، ہم اننون سے ڈرتے ہیں، ہم انسرٹینٹی کو تھریٹ سمجھتے ہیں۔ دماغ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سروائیول کے لیے ڈینجرز ڈھونڈتا رہے، اس لیے وہ بار بار پوچھتا ہے واٹ اف، یعنی اگر کا جملہ وہ بار بار ہمیں شو کرتا رہتا ہے۔ واٹ اف میری جاب چلی جائے تو، واٹ اف بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے تو، واٹ اف میں فیل ہو جاؤں تو، واٹ اف مجھے اگر کوئی بیماری لگ جائے تو۔ نوٹس کریے، فیوچر وری ہمیشہ واٹ اف سے شروع ہوتی ہے، یعنی اگر سے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی لائف کی کتنی وریز سچ ہوئیں اور کتنی صرف دماغ نے کریٹ کی تھی؟ دماغ پاسبلٹیز بناتا ہے، اللہ ریالٹیز لکھتے ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ یعنی جو دماغ سوچ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قدر اللہ میں بھی مینشنڈ ہو۔ ہم اس کی روٹ کاز پر بات کریں گے کہ فیوچر وریز جنریٹ ہی کیسے ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ہم کنٹرول چاہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پلاننگ کی صلاحیت دی، لیکن کنٹرول کبھی نہیں دیا۔ ہم پلاننگ کو کنٹرول سمجھ لیتے ہیں، اس لیے جب کچھ پلان کے مطابق نہیں ہوتا ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک سوال ہے یہاں پر، اگر سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہوتا تو پھر دعا کا کیا مطلب رہتا؟ پھر توکل کی کیا ضرورت ہوتی؟ پھر صبر کے لیے ہمیں کیوں اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا جاتا؟ اتنے زیادہ اجر بتائے گئے ہیں صبر کے، تو ہمیں پھر کیوں ضرورت ہوتی؟ ایک پیپر لیے، اس میں 2 سرکل بنائیں۔ ایک سرکل میں لکھیں کہ میرے کنٹرول میں، اور دوسرے سرکل میں لکھیے اللہ کے کنٹرول میں۔ اب اپنی وریز لکھیے، مثال کے طور پہ بچوں کا فیوچر، تو اس میں نے کیا دیکھنا ہے؟ میں نے اپنی کوشش، میری نیت، میری ان کی تربیت کرنا، یہ میرے کنٹرول میں ہے، تو یہ کنٹرول والے دائرے کے اندر آئے گا۔ ان کا ہدایت پا جانا، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ جاب کے حوالے سے اسکلز امپروو کرنا، یہ میرے کنٹرول میں ہے، اس کا رزلٹ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے ایکسرسائزز، احتیاط، میرے کنٹرول میں ہے، لیکن شفا کا ہونا یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن غور کریں کتنی انرجی ہم دوسرے سرکل میں لگا دیتے ہیں، اور پہلا سرکل خالی ہی رہ جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے کنٹرول میں ہے اسی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ گمان رہتا ہے کہ شاید وہ میرے کنٹرول میں ہے، اور یہی سوچ سوچ کے ہم کرتے رہتے ہیں۔ روٹ کاز نمبر 2، ہم اللہ کو جانتے کم ہیں، پرابلمز کو زیادہ جانتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا اس جملے کو کہ ہم روز کتنی بار پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنی بار اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ صرف دن بھر کا ہی جائزہ لے لیں،
और हम अपनी सोचों का अहाता करें, थोड़ा सा अगर मुहासबा करें, तो हमें पता चल जाएगा कितनी सोचें हमारी अल्लाह के बारे में सोचने में गुजरती हैं, और कितनी ज्यादा सोचों का हिस्सा सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही गुजरती हैं। अगर मेरा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पर हो तो प्रॉब्लम बड़ी लगती है, अगर फोकस अल्लाह पर हो तो अल्लाह सबसे बड़े हैं। इसीलिए कुरान बार बार अल्लाह की सिफात बताता है। क्यों? ताकि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो। इस पे गौर कीजिएगा कि मैं अल्लाह को किस नाम से सबसे ज्यादा याद करती हूँ। अर रज़ाक, या अल वकील, या अल हकीम, या अर रहमान, या सिर्फ मुश्किल के वक्त या अल्लाह कहकर वो बात को खत्म कर देती हूँ। रिलेशनशिप तब बनता है जब हम अल्लाह को पहचानते हैं। या अल्लाह कहना भी ठीक है, लेकिन जो सिफात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की हैं, ये सिर्फ रिदम के लिए बयान नहीं की हैं कि जब हम कुरान की तिलावत करें तो अच्छी साउंड निकले, या अच्छी एक टोन बन जाए, या खूबसूरत आवाज निकले। इसलिए नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सिफात। रूट कॉज नंबर 3, हम आउटकम को अपनी वर्थ बना लेते हैं। अगर मेरा फ्यूचर सक्सेसफुल तो मैं भी सक्सेसफुल, अगर मेरा बच्चा सक्सेसफुल तो मैं अच्छी माँ, अगर मेरी शादी अच्छी तो मैं वैल्यूएबल। नोटिस कीजिए, हम आउटकम को आइडेंटिटी बना देते हैं। इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है अल्लाह तुम्हारी नीयत और अमाल देखते हैं, रिजल्ट अल्लाह के पास है। हालांकि हमने क्राइटेरिया क्या बना लिया, जो आउटकम निकल के आ रहा होता है, और आउटकम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं कि क्या निकलेगा। फिर हमने एक और बात करनी है यहाँ पर, ट्रस्टिंग अल्लाह। तो तवक्कुल क्या है? लोग समझते हैं तवक्कुल मतलब अल्लाह देख लेगा, बल्कि नहीं। तवक्कुल 3 चीजों का नाम है। नंबर 1, जो मेरा काम है वो मैं पूरी जिम्मेदारी से करूं, यानी सबब इख्तियार करूं, एक्शन करूं। नंबर 2, जो मेरा काम नहीं उसे अल्लाह के हवाले कर दूं, यानी एक्शन करूं, आउटकम अल्लाह पे छोड़ दूं, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दूं। नंबर 3, जो रिजल्ट आए उसमें अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखूं। अगर मेरे मुताबिक रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब विल, मेरी मंशा दोनों पूरी हो गई, मैच हो गई। और अगर नहीं हुई मैच, तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह की हिकमत पर यकीन करूं, डाउट नहीं करूं। ये तवक्कुल में काउंट होता है, इसे कहते हैं तवक्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। डिलीवरी का वक्त है, शदीद कमजोरी की हालत है, अकेली भी है साथ में। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई होता ही है, हम अकेले नहीं होते हैं उस पेनफुल सिचुएशन में, लेकिन वो अकेली हैं, कोई नहीं है उनके साथ। अल्लाह चाहे तो खजूर नीचे गिरा देते, लेकिन अल्लाह ने कहा उन्हें तुम दरख्त को हिलाओ। एक कमजोर औरत, खजूर का दरख्त हिल सकता था? बिल्कुल भी नहीं हिल सकता था, लेकिन अल्लाह एक्शन देखना चाहते थे। फिर रिजल्ट अल्लाह ने खुद दिया, उन्होंने बस हिलाया। अब आप सोचें, इतनी पेनफुल सिचुएशन में एक औरत क्या ही किसी चीज को हिला सकती है जबकि शदीद दर्द में हो वो। लेकिन उन्होंने हिलाया जितनी उनकी इस्तिताअत थी उस टाइम पर, और अल्लाह ने रिजल्ट खुद दिया। फिर यही तवक्कुल है। फिर अल्लाह पर ट्रस्ट कैसे डेवलप करें हम? ट्रस्ट एक फीलिंग नहीं, एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप वक्त से बनता है, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें हम नोटिस करेंगे ताकि हमारा अल्लाह के साथ रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो। नंबर 1, अल्लाह की प्रीवियस हेल्प याद करें। आज से 5 साल पहले किस बात की फिक्र थी, अल्लाह ने निकाला या नहीं? ठीक है, हमारे हाल वही तो नहीं है ना जो पहले थे। एक जर्नल हम बना सकते हैं अल्लाह की मदद को देखने के लिए, और उसका हम टाइटल रख सकते हैं अल्लाह कैरिड मी बिफोर, ताकि हमें पता चले कि हमें कितने अल्लाह के एहसानात याद हैं। या जब अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली तो हमने उसको फॉर ग्रांटेड लेके और आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ के कभी शुक्र भी अदा नहीं किया। ये सोचा ही नहीं कि हाँ वो अल्लाह की मदद आई थी, मैंने दुआ की थी और अल्लाह ने पूरी की थी।
दूसरा है रोज अल्लाह की सिफात पढ़ना, सिर्फ नाम याद नहीं करना बल्कि रिफ्लेक्ट भी करना। जैसे अगर अल्लाह अल वकील है तो मैं किस बात को पकड़ कर बैठी हूँ। सिफात जो है अल्लाह ताला की, वो जीने का नाम है। यानी जो भी मसला आए, जो भी सिचुएशन में मैं हूं, तो मुझे अल्लाह की सिफात मालूम हो और मैं उन सिफात के साथ अल्लाह को पुकारूं, उन नाम के साथ अल्लाह को पुकारूं। रिस्क की तंगी है तो अर रज़ाक का हवाला दूं। इसलिए ही हमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और उतना ही अजर है अल्लाह के नेम्स के ऊपर। हम सिर्फ नाम की याद करने की हद तक रहने देते हैं, और उसके बाद जो डिटेल हमें उसके ऊपर पढ़ना चाहिए था, स्टडी करनी चाहिए थी, एक वक्त लगाना चाहिए था, हम वो छोड़ देते हैं। यानी ये कितनी अजीब सी बात है ना कि एक खालिक है और जिन्होंने हमें पैदा किया और हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। सोचें हमारा जहालत का लेवल, हमें अपने खालिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि जो हमें इतनी क्वालिटीज बयान करके वो भेजते हैं, वो इतनी बताते हैं, हमें एम्फसाइज भी करते हैं कुरान मजीद के अंदर। और हमारा जो है गौर कभी नहीं जाता कि हम सोचें कि हाँ, अल्लाह के नाम को सीखने में भी हमारा एक वक्त लगना चाहिए। बहरहाल, तीसरा है वरी को दुआ में कन्वर्ट करना। यानी हर वरी को एक दुआ बना देना। अगर दिमाग कहे व्हाट इफ, तो दिल में ये आए फौरन कि या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, और अगर नहीं तो मुझे उससे बेहतर अता फरमा। यानी हर वरी को दुआ में कन्वर्ट कर देना और अल्लाह के सुपुर्द कर देना मामला। क्योंकि अगेन, जो मेरे इख्तियार में है, मेरे कंट्रोल में है, उसके लिए मैं एक्शन करूंगी, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अल्लाह के कंट्रोल में है, वो मैं अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगी मामला। नंबर 4, प्रेजेंट में वापस आना। फ्यूचर में सिर्फ इमेजिनेशन होती है, लाइफ सिर्फ आज में होती है। अल्लाह ने रोज की नमाज दी, रोज की रोजी दी, रोज का कुरान दिया। अल्लाह ने मंथली ईमान का कोई पैकेज नहीं निकाला कि ये डाउनलोड कर लो और मंथली तुम्हारा ईमान आ गया, ये पैकेज है, ये ले लो। हमें डेली हमारी ईमान की लेवल डेली अपडेट होती है। तो फिर हमें डेली नमाज चाहिए होती है, डेली कुरान चाहिए होता है, डेली अल्लाह से कनेक्शन को अपना काम करना पड़ता है कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो अल्लाह ने हमें डेली कनेक्शन दिया। मैं चाहती हूं कि आप सब एक सेंटेंस कंप्लीट करें। मेरे सबसे बड़ी फ्यूचर वरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी फ्यूचर वरी है, आगे लिखें उसके, चैट बॉक्स में लिखें। मेरी सबसे बड़ी फ्यूचर वरी है, मिसाल के तौर पे बच्चों की तरबियत, हेल्थ, कुछ भी। हम्म। हम्म। सही है। अब उसके नीचे लिखें इस वरी में मेरा अगला सही कदम क्या है। यानी एक्शन रिक्वायर्ड, तवक्कुल में है ना, सबब इख्तियार करना, यानी खाली हाथ बैठ के तवक्कुल का दावा नहीं करना। बल्कि अगला एक्शन क्या होगा, सारी वरीज जो लिखी है ना आप लोगों ने, इसका सोचें कि एक्शन क्या होगा। मिसाल के तौर पे लिखा है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, मेरे बच्चे फितने में नहीं पड़ जाएं, मैं अकेली तनहा नहीं रह जाऊं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसका एक्शन प्लान बनाएं और बस पहला कदम लिखें यहाँ पर, क्या हो सकता है? हम्म। समीरा साहिबा ने लिखा है माशाल्लाह, टू बी अलोन के बारे में। यानी हमने पूरा फ्यूचर सॉल्व नहीं करना, हमने इतने बड़े बड़े एक्शन प्लान नहीं बनाने, हमने सिर्फ पहला कदम उठाना है आज के लिए। कल दूसरा कदम उठाएंगे उस वरी के लिए, परसों तीसरा कदम उठाएंगे।
डेली कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। जिन चीजों के बारे में नहीं पता है कि कैसे उठाएं, उनके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम गूगल नहीं है ना, हमें हर चीज का सोल्यूशन नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला ने लर्निंग कैपेसिटी भी हमारे अंदर रखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह इनबिल्ट है। सीखने का जज्बा, हम हर सांस लेने के मानिंद सीख रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। तो जिस चीज में मुझे दुश्वारी महसूस हो रही है और नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे उसमें से निकलूं, फिर मैं क्या करूंगी? मैं हेल्प लूंगी, मैं उसको सीखने की कोशिश करूंगी, मैं उस स्टकनेस से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी। कभी सोचा है आपने कि अल्लाह ने फ्यूचर को गायब क्यों रखा? अगर अल्लाह हमें पूरी जिंदगी एक साथ दिखा देते तो क्या हम जी भी पाते? मेरे ख्याल में तो हम टेंशनों में ही शायद, पता नहीं क्या होता हमारा, हम टेंशन के मारे ही मर जाते। हम नहीं जी पाते। हमें तो अगर ये पता चल जाए कि कल कोई गेस्ट आने वाला है और वो महीने से पहले नहीं जाएगा, भले डेट गैस से परेशानी नहीं है, जब वो आ जाता है तो पुरसुकून माहौल हो जाता है, लेकिन वो जब तक नहीं आता तब तक वो जो एनजाइटी रहती है वो महसूस होती है ना। बिला फजूल की एक एनजाइटी होती है। हालांकि वो गेस्ट आ जाता है, वो भी रह रहा होता है, हम भी रह रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब तक वो नहीं आता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर का पता चल गया ना कि कल आना है उसने, वो एनजाइटी शुरू हो जाती है, एक टेंशन शुरू हो जाती है। एक बहुत छोटी सी मिसाल है ये। तो अगर हमें जिंदगी ही पता चल जाती तो फिर हम अपना कल ही नहीं देख पाते, हम अपने आज में ही बस गम में ही मुब्तला रह जाते, क्योंकि हम माजी से ही नहीं निकल रहे हैं तब। तो फ्यूचर अगर पता चल जाता तो फिर तो जिंदगी खिंच ही नहीं पाती। माजी में ही जब हम, जो हमें पता चल चुका है माजी में, उससे ही हम अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और बस घसीटने वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर फ्यूचर पता चल जाता तो वो जिंदगी घसीटी भी नहीं जाती। तो अल्लाह ने ताला ने हमें फ्यूचर नहीं दिखाया, लेकिन हर दिन अपनी रहमत का एक नया हिस्सा दिया है। फ्यूचर की गारंटी नहीं दी अल्लाह ने, फ्यूचर कंट्रोल में नहीं दिया, लेकिन ये एक एहसास दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, यानी अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये एक एहसास दिया है। क्योंकि फ्यूचर का पता चलना कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह का हमारे साथ होना, इस बात की एश्योरिटी दी है अल्लाह ताला ने, है ना। इसकी एक मिसाल से बिल्कुल हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा हो और एक वालिद साहब हो और वो अंधेरे में कहीं जा रहे हैं बाय वॉक। तो बच्चे को फिक्र नहीं होती कि रास्ता कैसा है, आगे कितना लंबा चलना है, या अंधेरे में क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। उसे बस क्या होता है, एक एहसास उसके लिए काफी होता है कि वो वालिद साहब की उंगली पकड़ा हुआ है, तो वो सिक्योर है कि उसके साथ उसके वालिद साहब। खैर अल्लाह ताला की मिसाल तो सबसे बुलंद है, अल्लाह की कोई मिसाल ही नहीं दुनिया के अंदर। लेकिन वो जो एहसास है कि है मेरे साथ अल्लाह पाक, वो जो मैं प्लानिंग कर रही हूँ वो मेरे मुताबिक हो रही है तब, और मेरे मुताबिक नहीं हो रही तब भी अल्लाह मेरे साथ हैं। अल्लाह हमेशा मेरे साथ है। तो इसलिए सुकून फ्यूचर को जान लेने में नहीं है, उसकी परेशानियां लेने में नहीं है, बल्कि अल्लाह को पहचान लेने में है। मैं सेशन इस सवाल के साथ खत्म करना चाहती हूँ, क्या मैं अपनी जिंदगी अल्लाह से मैनेज करवाना चाहती हूँ या खुद अल्लाह की जगह मैनेजर बनने की कोशिश कर रही हूँ? इस पे सोचिएगा। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी थकान का सबब प्रॉब्लम्स नहीं होते, बल्कि वो बोझ होता है जो हम उठा रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ने कभी हमें उसे उठाने के लिए कहा ही नहीं था। इसीलिए तवक्कुल कमजोरी नहीं, बल्कि ये यकीन है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और जो मेरी बस से बाहर है उसका बेहतरीन निगहबान मेरा रब है। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिलों को मुस्तकबिल की बेजा फिक्रों से आज़ाद फरमाए, हमें प्लानिंग की हिकमत और तवक्कुल का सुकून अता फरमाए, हमें आज में जीने और कल को तेरे हवाले करने की तौफीक दे। आमीन। याद रखिए सिस्टर्स, तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि हमें कल का पता चल जाए। तवक्कुल का मतलब ये है कि हमें अपने रब पर इतना यकीन हो जाए कि कल चाहे जैसा भी हो हम तन्हा नहीं होंगे।
बस मेरा आज का सेशन यहीं तक था, अब आप लोगों की बारी है बोलने की।